Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Now in this lecture we are going to apply Gauss's law to calculate electric field intensity. Electric field electric field intensity due to infinite line of charge. Infinite line of charge. Line of charge. This is our today's topic. For this purpose, we have to consider first of all infinite line of charge. Let's suppose we have an infinite line of charge like this. This is a finite part of infinite line of charge on which charges are uniformly distributed over the length and we know when charges are distributed over the length, this is what we call linear charge density. Okay, now we select a point P here near the infinite line of charge where we want to calculate electric field intensity. To calculate electric field intensity, we have to apply Gauss's law, and Gauss's law is only applicable when we have a closed surface. When we have a closed surface, for this purpose we imagine a closed surface in the form of a cylinder like this. This is a cylinder we have. This is imaginary surface. Suppose this one imaginary surface, its height is h. Okay, this is its top surface S1, this is bottom surface S2, and third one is its curved surface, this one S3 is the curved surface. As we know, charges are distributed over the length of the wire, so we take a small element here, its length is dz, so charge is dq, and dq by dz is called surface charge density, linear charge density divided by lambda. Lambda is equal to dq by dz, or we can write over here dq is equal to lambda dz. dq is equal to lambda dz. dq is equal to lambda dz. To calculate total charge on the surface, on the infinite line, we integrate and we get q is equal to integral lambda dz. This is the total charge on the line. Now, as I said, there are three surfaces, S1, this S2, and third is the curved surface S3. On this surface, vector area will be upward, perpendicular. Vector area will be perpendicular. Electric field line will be from positive to outward and will be in this direction. Electric field will be in this direction and angle will be 90. Here बॉटम सरफेस पे देखिए इलेक्ट्रिक वेक्टर एरिया डाउनवर्ड होगा, ठीक है, वेक्टर एरिया ऐसे डाउनवर्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, एंगल यहाँ पे 90 बनेगा, ठीक है। तो कर्व सरफेस के लिए जो एंगल होगा वो 0 बनेगा। ये जो कर्व सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसी है, इस जहाँ भी देखेंगे आप, क्योंकि 3 डायमेंशनल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऑल डायरेक्शन में जा रही हैं, तो जहाँ मर्जी आप लेंगे तो कर्व सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया जो होंगे वो पैरेलल होंगे, वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होंगे। बॉटम और टॉप सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर होंगे, और जब वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं तो उस वक्त फ्लक्स ज़ीरो होता है, क्योंकि हम जानते हैं लाइक दिस वी नो दैट, पहले हम अगर S1 की वजह से फ्लक्स निकालना चाहेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, हम जानते हैं फाई इज़ इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए होता है, ई डॉट डी ए। तो अगर S1 ये फाई 1 होगा सरफेस फ्लक्स, तो हमारे पास ई डी ए कॉस थीटा आ जाएगा, ई
डी ए कॉस, और कॉस हम जानते हैं 90 बनता है, कॉस 90 ज़ीरो होता है, तो फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली बॉटम सरफेस का फ्लक्स जो होगा फाई टू, वो भी ज़ीरो होगा क्योंकि वहाँ भी एंगल 90 बनता है, वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो थर्ड सरफेस जो हमारे पास है वो है कर्व्ड सरफेस, तो उसका फ्लक्स होगा फाई थ्री इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस ज़ीरो, ई डी ए कॉस ज़ीरो, तो कॉस ज़ीरो वन होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल ई डी ए, ई कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकाल लेंगे डी ए। अब जो डी ए है ये इस क्लोज सरफेस जो सिलेंडर था उसका एरिया है, और उसका सिलेंडर का एरिया कैसे निकालते हैं, उसका ये जो बॉटम होती है या जो टॉप होती है इसका जो सरकमफेरेंस इंटू हाइट, क्योंकि लेंथ इंटू विड्थ है, तो एच इंटू एस, तो एस जो होता है वो 2πr है, एस जो है वो 2πr होता है, तो 2πr इंटू एच इज इक्वल टू एरिया, सो डी ए हमारे पास आ जाएगा 2πr जो उसका सरकमफेरेंस है इंटू एच, ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा E इंटू 2πrh, E इंटू 2πrh, सो वी गेट फ्लक्स फाई थ्री इक्वल टू E इंटू 2πr, ये सरकमफेरेंस S इंटू एच, ये तो टोटल फ्लक्स हम तुमको ऐड कर देंगे फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री, तो फाई वन फाई टू तो ज़ीरो थे ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2πrh इंटू ई इज इक्वल टू फाइव। आल्सो बाई गासेस लॉ फ्लक्स कितना होना चाहिए था, उसके मुताबिक फाइव इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू होना चाहिए था, और क्यू की वैल्यू हम जानते हैं, हमने कैलकुलेट की है लैम्डा इंटीग्रल डी सी शुरू में हमने की थी, तो वो था 1/ε0 इंटू इंटीग्रल लैम्डा डी जी। तो अगर इसको आप लिखना चाहें, लैम्डा को बाहर निकाल लें तो लैम्डा इंटीग्रल डी जी जो है वो टोटल लेंथ बन जाएगी, वो जो एच थी हमारे पास। सो वी कैन राइट ओवर हेयर फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू जो क्यू है इसकी वैल्यू आ जाएगी लैम्डा एच, लैम्डा एच। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, ये दोनों इक्वल, ये भी इक्वल हो जाएंगे, तो याद रखो क्या है 2πrh E इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू लैम्डा एच। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हम लिख सकते हैं 2πrh इंटू ई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है 1/ε0 इंटू लैम्डा एच, तो एच से एच कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, E इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2π r। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज। वेक्टर फॉर्म में E के ऊपर एरो डाल देंगे, इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2π r इंटू r हैट। This is what we call the vector form of electric intensity due to infinite line of charge. That's all from here. Allah Hafiz.